Bismillahirrahmanirrahim. Inorganic chemistry, BS programs, chemistry, physics, फर्स्ट सेमेस्टर। केमिकल बॉन्डिंग हम स्टडी कर रहे थे। डिफरेंट जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उन्हें हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट हमने मॉडर्न थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को स्टडी किया। तो अगरचे वेस्पर थ्योरी शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। स्टिल हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत है। तीसरी बात ये भी थी कि जब हमने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को वेव लाइक कहा, तो भी हमें वेव नेचर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसके बारे में हमने वजाहत करना थी। तो जो लेटेस्ट थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल थ्योरी है, जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड की वजाहत करती है, और इसे हम प्रेफर भी करते हैं ऑल अदर थ्योरीज पर, स्पेशली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज हैं। Molecular orbital theory describes the valence electrons as associated with all the nuclei concerned. The nuclei are in equilibrium positions in the stable molecule, and electron associated with all the nuclei can be described by wave functions. The energy states of electrons can be described in the combined states or molecular orbitals. The molecular orbitals are multi-centered or delocalized. They are filled with the required number of electrons. Each molecular orbital is usually filled with 2 electrons. Molecular orbitals may be obtained by the linear combination of atomic orbitals method. The molecular orbitals are assumed to possess the following characteristics. Each electron in the molecule is described by a wave function phi. The value of phi is such that the value of phi square at any point represent the probability of finding the electron in unit volume around the point. The wave function are called molecular orbitals. These molecular orbitals are polycentric so that the electron moves in the field of all the nuclei. Each molecular orbital has its own energy. Each electron has a definite spin, clockwise or anti-clockwise, plus half or minus half, and Pauli's exclusion principle is observed. The appropriate form of the wave equation is quite complicated and cannot be used for exact solution except for hydrogen. Thus, approximations are necessary. One of the approximations is that when an electron comes in the vicinity of one nucleus, the force arising on it is due to the nucleus and its other electrons. Both the wave equations and its solutions resemble those for the isolated atoms, and the molecular orbital consists of a series of superposed self-consistent orbitals. This procedure is known as linear combination of atomic orbitals. The greater the overlap of atomic orbitals among themselves, more stable molecular orbitals with least energy state are obtained. The energy of the molecular orbitals is least when the combining atomic orbitals have equal or almost equal energy states.
Atomic orbitals of low energy will not be able to overlap with other atomic orbitals, and electrons carried by them will be non-bonding. Each molecular wave function corresponds to a definite energy value. The sum of the individual energies of the molecular orbitals after correction represents the total energy of the molecules. Let us now apply these factors to the simple homonuclear diatomic molecules such as hydrogen, in which two identical atoms are linked by an electron pair bond. अगरचे हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम डिफरेंट हैं, एक ए है एक बी है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं इसे कि एक को ए के साथ और एक को बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए साई ए जो है, अब ये लफ्ज़ पी एस आई साई ए, ये वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम ए का, और साई बी एटॉमिक वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम एच बी। The effective overlap of the wave function A and B will take place only if the orbitals have similar energy state, the orbitals overlap to a considerable extent, and orbital have the same symmetry. All these conditions are fulfilled by atomic orbitals of both the hydrogen atoms. Now the molecular wave function phi will be obtained by the linear combination of the atomic orbitals wave functions psi a and psi b. So phi will be equal to psi a1s plus psi b1s. इसमें c जो है ये एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं। ये कांस्टेंट क्या चीज़ है? Coefficient which represent the relative proportions of psi a1s and psi b1s in the molecular orbital phi in the ratio of 1 square c square, but both H and Hb are identical, so psi a1s and psi b1s must make equal contribution to the molecular orbital. In such case, c square is equal to 1 and c is equal to plus minus 1. Thus, there are two possible ways of representing the molecular orbitals, which are obtained by substituting c in this equation, phi b and phi a, यानी साई ए वन एस प्लस साई बी वन एस, और दूसरा होगा माइनस में साई ए वन एस माइनस साई बी वन एस के साथ आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी थ्योरी आ गई। The molecular orbital wave function phi b described in equation 1.8 indicates that the two atomic orbitals reinforce between the two nuclei. This wave function corresponds to the molecular orbitals of the low energy, which is called bonding molecular orbital. The bonding molecular orbitals can have a pair of electrons with opposite spin. Phi b represent here a bonding molecular orbital of sigma symmetry formed by linear combination of 1s atomic orbital. It is designated as sigma 1s। और दो उसी तरह से मालिक ऑर्बिटल साई ए जो है वो जो लास्ट इक्वेशन में था, तो इसमें ये 1s और साई बी जो है एटॉमिक वेव फंक्शन ये सुपरपोज कर रहे हैं। After the sign of the latter has been changed, the resulting wave function corresponds to what is called anti-bonding molecular orbital and high energy. This corresponds to a configuration where both the electrons will have the same spin and would not be able to form a bond. Represent a molecular wave function corresponding to anti-bonding molecular orbital. In this case, linear combination of 1s atomic orbital is represented by sigma star 1s। इसमें मैं सिंपली बता दूं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो इनकी जो वेव्स हैं, अगर तो वेव्स इन फेज हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, तो फिर लो एनर्जी ऑर्बिटल, और अगर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं, तो उस सूरत में ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये हासिल होगा। तो एक को हमने बी के साथ, एक को ए के साथ, ए से मुराद एंटी बॉन्डिंग और बी से मुराद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये उससे इस तरह ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाइड्रोजन के दो एस ऑर्बिटल जब ये एक दूसरे के साथ, यहाँ हम लफ्ज़ कंबाइन कहेंगे, ओवरलैप अगरचे लफ्ज़ कहा हुआ है,
कि जो ओवरलैप्ड एरिया ये कंबाइंड वेव्स हैं, वेव फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स के मुताबिक। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल आगे, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इससे बन जाएगा। एक लो एनर्जी का अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से, एक हाई एनर्जी का अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा। तो अब यहाँ पर हमने ये बात कही कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, जिनमें से हाफ जो हैं उनकी एनर्जी लेस होगी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाफ की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो इस तरह से ये बने लीनियर कॉम्बिनेशन से। अगर इसकी वजह पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सिमिलर कंसिडरेशन वुड अप्लाई टू लीनियर कॉम्बिनेशन, तो पी टाइप एटॉमिक, और अगर पी है तो भी सेम टाइप आ जाएगा। तो इसमें देखें ये फाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो साई ए 2px प्लस साई बी 2px, और इसमें उसकी वो आपने माइनस कर देना है। एक सिग्मा 2px कहलाएगा और हाई एनर्जी का सिग्मा स्टार 2px कहलाएगा। ये इसकी डायग्राम देख लें, ये पी दो आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसके अलावा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन की वजह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन हैव पैरेलल ओवरलैप या पैरेलल combination and combine to form molecular orbitals having a node on the internuclear x-axis. The molecular orbitals formed are said to possess pi symmetry. The molecular wave functions are again obtained by linear combination of atomic orbitals. Thus, the combination of two py atomic orbitals would be represented in terms of wave function. ये आप देख लें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में y प्लस एक में कर दें और एक को आप माइनस कर दें, z को भी इसी तरह एक में प्लस कर दें, एक को आप माइनस कर देंगे। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा। एक पाई वाई 2p, एक पाई z जो है बन जाएगा, एक पाई स्टार 2p और एक पाई स्टार z2p उसे आप कह देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, ये उसकी डायग्राम है, ये आप इससे फेमिलियर हैं। एक लो एनर्जी का और एक हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेगा। In order to know about the filling of the electron in the molecular orbital, it is necessary to find out the order of stability of the energy states of their molecular orbitals. यानी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे उनका एनर्जी ऑर्डर हमें एक स्टेबिलिटी के मुताबिक तरतीब देना होता है। Order of stability have been obtained by the study of molecular spectra in the UV region. The order of stability of for various molecular orbitals are as given. तो ये इसका है कि है इसमें जो वैल्यूज़ इसमें दी हुई हैं, आप टेक्स्ट बुक से इसे, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पर स्क्रीन पर, तो टेक्स्ट बुक से इसे आपने नोट कर लेना है। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है और ये एक इसका टेबल सा बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल जिस तरह से बन रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये आगे इसकी एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिथियम 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 के लिए। तो इसमें एक हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल भी हम नोट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए देखें, दो हाइड्रोजन एटम जिसमें दोनों के अंदर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये मिलकर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन जाएगा। और इस तरह से इसकी जो डायग्राम है हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बन गया। दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं लो एनर्जी ऑर्बिट जो कि ज़्यादा स्टेबल उसमें रहेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर देंगे H2 सिग्मा 1s2 और HH बॉन्ड आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग
डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1। सो H और H के दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जो है हीलियम का मॉलिक्यूल, इसमें हाइपोथेटिकल कंसीडर किया हुआ है। अच्छा देखें, इसकी डायग्राम आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। हीलियम, इसे आप कहेंगे हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, तो अच्छा हीलियम 1s में 2 है, इधर हीलियम में भी 1s2 है। एक लो एनर्जी का बन गया, एक हाई एनर्जी का। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 2 आ जाएंगे बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। इस तरह से ये होगा कि इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो देयर विल बी नो बॉन्ड बिटवीन हीलियम एटम्स, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिथियम 2 मॉलिक्यूल है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन और डायग्राम नोट कर सकते हैं। ये आ गई 1s 1s के दरमियान, 2s 2s के दरमियान। जस्ट इसे आपने नोट करना है, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है और आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, देखें ऑक्सीजन की आप पहले कर लें कॉन्फ़िगरेशन। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1s2 2s2 2p, x में भी 2 आ गए, y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2px और 2py atomic orbitals would contribute to the bonding, यानी बल्कि इसमें आप ये कहें कि z और y जो हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। x में तो कंप्लीट फील्ड हो गए ना। अच्छा, as 1s2 and 2s2 orbital will not contribute in the bonding, we will not discuss these orbitals. Let us draw the molecular orbital diagram of oxygen starting from 2p x, y and z atomic orbital of the two oxygen atoms। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, एक बात इसमें नोट करें, ज़रूरी नहीं कि x में 2 इलेक्ट्रॉन हो, y और z में एक एक। y और z में भी 2 2 हो सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप इसे लिख सकते हैं। अब ये देखें, इसकी ये डायग्राम आ गई। पहले 2s को हमने शो किया सिग्मा, यानी s के साथ क्या होगा लीनियरली, तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बन गया। उसके बाद अगर आप नोट करें कि एक px के साथ जब मिलेगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन से उसकी एनर्जी सबसे कम सिग्मा 2px की, क्योंकि ओवरलैप इसमें ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसका दूसरा जो है हाईएस्ट एनर्जी में चला जाएगा सिग्मा स्टार 2px में। अच्छा, फिर y और z जो हैं ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, तो जब ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं तो इनसे आप देखें पाई 2py और पाई 2pz जिसे आप रिप्रेजेंट कर दें, ये दोनों बराबर एनर्जी के होंगे और इनकी एनर्जी सिग्मा 2px से ज़रा ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इनमें ओवरलैप इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसके बनाने के बाद इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 2 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एनर्जी ऑर्डर बन गया, फिर सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz और इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पाई स्टार y में और पाई स्टार z के अंदर। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भी शो हो रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ये ही इसकी मेन कामयाबी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो कोई और थ्योरी इसकी वजाहत नहीं कर सकती। इसके ज़रिए हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये एनर्जी ऑर्डर आ गया जो मुख्तलिफ इसके ऑर्बिटल बने। बॉन्ड ऑर्डर इसका आप निकाल लें, 3 - 1 तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल,
ये ऑक्सीजन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी उसमें 8 थे, इसमें 7 आ गई। बाकी देखें इसकी जो डायग्राम है वो तो बाकी तो सेम है। फ़र्क फिर कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क आ रहा है कि सिग्मा जो 2s है, इसकी एनर्जी पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड से ज़रा ज़्यादा है। इसकी करेक्शन कर लें कि ये 2s के साथ मिलकर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बन गया। फिर 2p एक्स वाई और जेड है, 2p एक्स वाई और जेड है। 2p x के साथ जब मिलेगा तो इससे सिग्मा ऑर्बिटल बना और सिग्मा स्टार। हम देख रहे हैं कि पाई जो 2p y और पाई 2p z हैं, इनकी एनर्जी सिग्मा 2s से कम है और सिग्मा की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। हालांकि ओवरलैप सिग्मा में ज़्यादा होता है, पाई में कम है। तो सिग्मा की एनर्जी ऑक्सीजन की तरह कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसकी एक रीज़न है, वही एफएससी वाली पॉइंट को अगर आप जहन में लाएं। कौन सा पॉइंट है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ये जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, यानी स्पेशली 2s और 2px को कह दें आप, ये आपस में क्या करते हैं कि ये मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑप्टर्स बना देते हैं। और ये 2s ये जो सामने हमारे है ये, और उधर 2p का x जो है, ये प्योर s और प्योर px नहीं रहते। 2s में थोड़ा सा p करेक्टर और 2px में थोड़ा सा s करेक्टर शामिल हो जाता है। इस तरह से 2s और 2px के मिलने से क्या बन गए? दो हाइब्रिड ऑप्टल बन गए जो sp टाइप होंगे, नॉट प्योर sp टाइप। और एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के जब मिलेंगे आपस में एटम, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 4 ऑर्बिटल, जिनमें से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बना देंगे। और दो की एनर्जी कम होगी और दो की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज़रा कम हो जाएगी और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सिग्मा 2s पाई 2p y और पाई 2p z से एनर्जी में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा इस तरह से नाइट्रोजन का। इसकी वजाहत आप यहाँ से देख सकते हैं। F2 मॉलिक्यूल जो है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप नोट कर लें कि यानी वो था ना, जैसे 8 7 8 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें सारे पी ऑर्बिटल इक्विवेलेंट हैं, अगरचे ये इक्वी इनर्जेटिक हैं, या उसे आप कह देते हैं कि डीजेनरेट हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखें 2s और 2s मिलकर फिर 2p x y और z हैं। तो इसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है देख रहे हैं आप, बिल्कुल वही वही बिल्कुल एग्जैक्ट आप जैसे ऑक्सीजन की आपने ड्रॉ की थी शेप वैसे बनेगी। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में भी आप नोट कर लें कि कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। बॉन्ड ऑर्डर इसका आप निकालें, नाइट्रोजन का भी आपने देखा, और यहाँ पर भी 3 - 2 करके ये 1 के बराबर आ गया। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आप नोट कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। बस ये आज का हमारा लेक्चर था अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।